We're going to carry on the topic of desiring spiritual gifts. और हम जो अपना विषय हमारा चल रहा था आत्मिक वरदानों की धुन में रहना, उसको हम आगे जारी रखेंगे. For the last 2 weeks, we're looking at this aspect of desiring spiritual gifts. और ये इस विषय पे हम 2 हफ्तों से मनन कर रहे हैं कि कैसे आत्मिक जो वरदान है उसकी हमारे को धुन में रहना, उसकी लगन में रहना है. Based on 1 Corinthians 14 chapter verse 1. और ये आधारित है 1 कुरिन्थियों 14:1 पे. Where the apostle Paul writes to the church in Corinth, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. और जैसे पौलुस वहां पे लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो. When we desire something very earnestly and deeply from the Lord and we have the right motivation, God is inclined to give it to us based on Hebrews 2:4. और इब्रानी 2:4 के अनुसार जब हमारी इच्छा होती है और हम उससे परमेश्वर से उस चीज को मांगते हैं उसके राज की बढ़ोतरी के लिए, तो परमेश्वर जो है उसको देने के लिए वो भी बाधित हो जाते हैं. And the first time, 2 weeks before, we spoke on the gift of prophecy, desiring the gift of prophecy. और 2 हफ्ते पहले हमने भविष्यवाणी के दान के ऊपर बात करी थी. The gift of hearing from God and speaking to people in a way they are built up and encouraged and edified. परमेश्वर से सुनना और लोगों को बताना इस तरीके से कि लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी हो. And last week we spoke about the gift of distinguishing between spirits, discerning of spirits. और पिछले हफ्ते हमने बात करी थी ये परखने वाली आत्मा की बात. And today we're going to speak on one more gift which is very important for every one of us. That is the word of wisdom. और आज हम एक और विषय पे मनन करेंगे, बहुत एक वरदान पे जो कि बुद्धि का वचन का, जिसके ऊपर मनन करेंगे. Now if you look at 1 Corinthians 12 chapter verse 8, it talks about the word of wisdom, the rhema of wisdom, an instruction of wisdom for a particular situation at a particular point of time. और यहाँ आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों की दी जाती है. हमारे को ये जो आत्मा, ये जो बुद्धि की ज्ञान है, इसको हमें समझना है ताकि हम पर एक खास परिस्थिति में किस तरह से हमारे को बर्ताव करना है. This word of wisdom is different from the level of wisdom we have based on how we live by the word of God. As we live by the word of God, wisdom is manifested. और जब हम परमेश्वर के वचन पर रहते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन से प्रकट होता है. Now, the word of wisdom as a manifestation of the Holy Spirit is a particular instruction given by God to face a particular situation. और ये जो परमेश्वर का भविष्यवाणी का वरदान जो बुद्धि के द्वारा से हमें देता है, वो एक खास परिस्थिति के लिए खास तरीके से हमारे को किस तरह से उसको सामना करना है उसके लिए देते. Wisdom is different from knowledge. और ज्ञान से ये बुद्धि जो है ये अलग है. Knowledge is a lot of information, lot of knowing a lot of things. और ज्ञान मतलब बहुत सारी चीजों की बातें, उसके विषय में हमें जानकारी हो. And wisdom is required to apply that in your life. और ये हमारे को बुद्धि जो है ये तो हमारे को अपने जीवन में किस तरह से अमल में लाना पड़ता है. So wisdom basically is the knowledge of using knowledge. और बुद्धि है कि ज्ञान को, बुद्धि को ही हम किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग करें, यही बुद्धि है. We can have a lot of knowledge, but if a little wisdom, we are a danger to society. अगर हमारे पास बहुत सारा ज्ञान हो और बुद्धि ना हो तो हम अपने समाज के लिए बहुत खतरा बन जाएंगे. A lot of information, we don't know how to apply it. We are confused. We confuse everybody else. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जानकारी है और हम उसके द्वारा से हम खुद भी उसमें उलझे हुए हैं और दूसरों को भी उलझा देते हैं. Whereas we have a lot of wisdom and little knowledge also, whatever we know, we'll apply it properly in our lives. अगर हमारे पास ज्ञान कम हो पर अगर बुद्धि हो तो हमारे पास चाहे थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, उसको हम अपने जीवन में सही तरीके से अमल में ला सकते हैं. One of the manifestations of the Holy Spirit in us is, the gift of wisdom is, that we'll be able to face a particular crisis according to the will of God. और एक बुद्धि की बात आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमारे को ये बुद्धि होती है कि एक परिस्थिति को, कोई परेशानी आती है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसका कैसा सामना कर सकते हैं. When people come to trap us in our words, when we have the word of wisdom, we will know how to respond. जब लोग हमारे को बातों में फंसाने के लिए आते हैं और अगर हमारे पास बुद्धि की आत्मा होगी, परमेश्वर का वचन बुद्धि होगी, तो हम उसका सामना कर सकेंगे, उनको जवाब दे सकेंगे. We see how the Lord Jesus Christ manifested wisdom as an example for us to face people came to him with trying to trap him in his words. यीशु मसीह हमारे बड़ा अच्छा उदाहरण है, कैसे जब लोग उनको उनके बातों में फंसाने के लिए आते थे, यीशु मसीह कैसे उनको बुद्धि से उत्तर देकर उनको चुप करा देते थे. In John chapter 8 verse 1 to 11, we did a familiar story about how the teachers of the law, the Pharisees, brought a lady
for adultery to Jesus. और यूहन्ना 8 हम पहले आयत से आगे हम देखते हैं 1 से 11 में कि कैसे एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लोग लेके आए थे And they told him, this lady is caught in adultery. और उन्होंने कहा ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है The law says she should be stoned. और व्यवस्था के अनुसार ये है कि इसको पथरवा कर देना चाहिए. What do you say? और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? The Bible said they were trying to trap him in his words. और बाइबल में लिखा है कि वो उसकी बातों में उसको उलझाना चाहते थे. If he had said stone her, he would have gone against the Roman law. अगर वो प्रभु यीशु मसीह कहते थे इसको पथरावा करो तो रोमी जो कानून था उसके विरोध में हो जाती बात. Well, according to Roman law, only Roman citizen can pass a sentence of death. क्योंकि रोम की जो कानून था उसके अनुसार रोमी से नागरिक जो है वो ही मृत्यु दंड दे सकता था. Lord Jesus Christ was not a Roman citizen. और प्रभु यीशु मसीह तो रोम के नागरिक नहीं थे. Unlike Paul, who was a Roman citizen. और पौलुस जो था वो तो रोमन नागरिक था. So if Jesus said stone her, he would have gone against the Roman law. अगर प्रभु यीशु मसीह कहते इसको पथरवा कर दो तो रोम का जो कानून था उसके विरोध की बात हो जाती. If he said don't stone her, he would have gone against the Jewish law. और अगर वो कहते कि इसको पथरवा ना करो तो यहूदियों की जो व्यवस्था है जो कानून है उसके विरोध की बात हो Either जाती. way, they were trapped. They would have got trapped. और वो सोच रहे थे किसी भी तरीके से बोलेंगे फंस जाएंगे. How do they respond to that accusation against her? और प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके ऊपर जो दोष लगाया गया था स्त्री पे उसका कैसे उसको उत्तर दिया. He tells the people who brought her to him, he was not sin, let him cast the first stone. और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते हैं जो उसके ऊपर दोष लगाने के लिए आए थे कि तुम में से जिसने अभी तक पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे. And one by one, everybody went away. और एक एक करके सब वहां से चले गए. The only one who had the right to stone her was Jesus because he had not sinned at all. और एक ही व्यक्ति जो उसको पथरवा कर सकते थे जिसको अधिकार था प्रभु यीशु मसीह थे क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया था. He tells us, neither will I condemn you. Go now and live your life of sin. और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता डर नहीं लगाता मैं तेरे को माफ करता हूँ. Christ is a personification of wisdom. और प्रभु यीशु मसीह बुद्धि का एक प्रगट रूप है. In 1 Corinthians 1:30 it says, Christ has become for us wisdom from God. और पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरे. So these examples are for us to know how to manifest the word of wisdom as Jesus demonstrated. और ये हमारे लिए उदाहरण है कि जैसे प्रभु ने दिखाया बुद्धि का किस तरह से प्रयोग करना उत्तर देने के लिए हमारे लिए भी ये उदाहरण है. When people try to trap us in our words, at that time Holy Spirit will give us the exact words we have to speak. और जब लोग हमारे को हमारी बातों में फंसाना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी हमारे को बुद्धि देते हैं कि हम सही शब्द उस समय बोलें. One more example we see in the Bible is in 22nd chapter of Matthew. और एक और उदाहरण हम देखते हैं मत्ती उसके 22वें अध्याय में verses 15 to 21. उसकी 15 से 21वीं आयत में. Where the Pharisees send their messengers, teach the Lord to Jesus with a question. वहाँ जो फरीसी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोगों को भेजते हैं एक प्रश्न लेके. Along with them came the Herodians. और उनके साथ हेरोदियंस भी आए. Who are the Herodians? ये हेरोदी कौन थे? They were people who were actually they were sycophants of Roman rule. और ये हेरोदी वो थे जो रोम के राज के विरोध में थे. No. They were supporters of Roman rule. अच्छा रोम के राज के पूरी तरह से सपोर्ट करते थे पूरी तरह से उसके साथ थे. People who were opposing Roman rule were the zealots. और जो विरोध करते वो ज़ेलोट्स कहलाते थे. Now, there are 4 kinds of Jews those days. उस समय में 4 तरीके के यहूदी होते थे. Pharisees, फरीसी, Sadducees, सदुकी, Essenes, असीन, zealots, ज़ेलत्स थे, Herodians. और हेरोदियंस थे. Zealots opposed Roman rule. Herodians supported Roman rule. जो ज़ेलत थे वो रोम के राज का विरोध करते थे और जो हेरोदी थे वो उसके साथ सहमत थे. So the Pharisees sent the Herodians along with the representative of Jesus to ask him a question: should he pay taxes to Caesar? और वो हेरोदियों को चेलों उनके अपने लोगों के साथ भेजते हैं कि जाके यीशु मसीह से पूछे कि क्या हमें रोम के राज को कैसर को हमें कर देना चाहिए. If Jesus said don't pay taxes, then Herodians would go to Herod and say, see, he's saying don't pay taxes. अगर वो मना करते यीशु मसीह तो लोग कहते देखो यीशु मसीह रोम के राज को कर देने से मना कर रहे हैं. When this question comes to him, Jesus says, why are you trying to trap me in my words? जब ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया तो यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे को कहे कपटे मुझे क्यों परखते हो. He asked them to show them the coin they're supposed to use for taxes. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला मुझे एक सिक्का दिखाओ जो कर देने के लिए प्रयोग किया जाता था.
And whose portrait is this? और उसमें बोला इसमें किसकी ये मूर्ति लगी है? Caesar's. उसमें सीजर की चित्र था। The Lord says, give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's. और उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। That is the word of wisdom. और ये बुद्धि का वचन है। We see that in the life of the disciples also. और ये बात हम चेलों के जीवन में भी देखते हैं। When Stephen was being stoned to death, जब स्तिफनुस को पथरवा किया जा रहा था, he was known to be a man full of wisdom and the Holy Spirit. और वो जो था बुद्धि और समझ से भरा हुआ व्यक्ति था। In fact, when the church in Jerusalem was growing, there was a problem about supervising distribution of food among widows. क्योंकि जब कलीसिया बढ़ रही थी उस समय में, तो विधवाओं में जो खाना बांटा जाता था उसके ऊपर एक विवाद हो गया था। The Grecian Jews complained against Hebraic Jews that their widows were neglected the daily distribution of food. जो यूनान के यहूदी थे, वो जो हेब्रानी यहूदी थे, इनमें विवाद था कि ये लोग जो है हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। And the apostles met to consider this question. और उन्होंने प्रेरितों के पास आए कि किस तरह से इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। And they realized they cannot neglect the ministry of the word of God because of this problem. उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई है, इस समस्या के कारण से हम उसको नहीं नजरअंदाज कर सकते। And they told the church, choose 7 people full of the Holy Spirit and wisdom will have the responsibility handed over to them. और उन्होंने कहा कि तुम कलीसिया में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, 7 ऐसे लोगों को जो आत्मा से परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए परिपूर्ण हो, उनको लेके आओ ताकि वो इस समस्या का समाधान कर सके। We will devote ourselves to the prayer and the ministry of the word. और हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। The church chose 7 people. तो कलीसिया ने 7 लोगों को चुना। What is the qualification? और उनकी क्या उनकी खूबी थी? Full of wisdom and the Holy Spirit. कि वो बुद्धि से भरे हुए थे और आत्मा से भरे हुए थे। And one among them was Stephen. और उनमें से एक स्तिफनुस था। When he was under trial before the Sanhedrin, before the Jews, he testifies. और जब वो यहूदियों के सामने जब गवाही देता है अपनी, and 7th chapter of Acts talks about that. और प्रेरितों का 7वां अध्याय में इसके बारे में लिखा है। And starting from 6th chapter, we read about the story about Stephen and the Jews. और 6ठे अध्याय के अंत से हम पढ़ते हैं कि कैसे यहूदियों की और स्तिफनुस के बीच में वाद-विवाद शुरू होता है। But then if you look at the 6th chapter verse 10, it says, they could not stand up against his wisdom or the spirit by whom he spoke. परंतु प्रेरितों का हम 6ठे अध्याय की 10वीं आयत में पढ़ते हैं, पर उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सकी। In our lives, so often we meet people who try to trap us in our words. और हमारे जीवन में बहुत समय ऐसे लोगों का सामना होता है जो हमारी बातों में हमें फंसाना चाहते हैं। When you have the word of wisdom given by the Holy Spirit, you will know how to respond, not to get trapped in our words. और जब आत्मा से हमारे को वचन मिलेगा, बुद्धि से वचन मिलेगा, तो हमें उत्तर देना आएगा कि हम उनकी बातों में ना फंसें। Also, the word of wisdom will give us instructions in our ministry where to go, where not to go. और हमारी सेवकाई में भी ये बुद्धि का आत्मा जो है हमारे को बताएगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। Now, there was a point of time when the Lord had healed a certain person in a synagogue, as recorded in the 12th chapter of Matthew, verse 14-15. और मत्ती 14-15 में हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। On the Sabbath day, a man who crippled his hand was shriveled, he was healed miraculously by Jesus. और सब्त का दिन था और वो उस व्यक्ति के हाथ को प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करके चंगा कर दिया। And when the Pharisees saw that, they went out and plotted how to arrest him. और जब फरीसियों ने इसको देखा तो बाहर जाके विरोध करने लगे कि उसको किस तरह से नाश करें। They were basically jealous of his ministry. वो वास्तव में तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से चिढ़ते थे। They're trying to find some fault in his ministry by which they can accuse him. वो कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाह रहे थे, कोई उसमें नुक्स ढूंढना चाह रहे थे उसकी सेवकाई में, ताकि उसी में उसको फंसा सके। In him there was no sin. पर प्रभु यीशु मसीह में तो कोई पाप था ही नहीं। They couldn't find a fault. उसमें कोई नुक्स नहीं ढूंढ पाए। They didn't realize he is the Lord of the Sabbath. और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह तो सब्त का प्रभु है। So when he healed on the Sabbath day, they thought this accusation, they want to go to kill, plotted how to kill him. और जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने सब्त के दिन चंगाई दी, तो वो उसको योजना बनाने लगे किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को मार सकें। When they ultimately handed him over to Pilate, the accusation was 2 things. One is he called God his father. और जब उन्होंने पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को सामने खड़ा किया तो दोष यही लगाया, पहला तो ये लगाया कि ये प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना पिता बोलता है।
And number two, heal on Sabbath day. और दूसरा ये सब के दिन चंगाई करता है. So in 12th chapter of Matthew 14:15, when he healed a person on the synagogue, in the synagogue on a Sabbath day, और सबत के दिन हम मत्ती 12 में जो 14-15 में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को सबत के दिन चंगाई दी, they went out and plotted how to arrest him. वो बाहर जाके ये योजना बनाने लगे कि किस तरह से इसको नाश करें. The Bible says when the Lord heard about it, he withdrew from that place. यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ये बात जानकर वो वहां से चला गया. That does not mean that he was covered. He went in step with the instruction, the wisdom given to him by the Lord. और प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि उनको मिली थी उसके अनुसार वहां से चले गए. Moving in step with the Spirit. और आत्मा के साथ साथ अनुसार चलते रहे. And then later on during the Feast of Tabernacles, और बाद में जो वेदियों का पर्व होता है, the beginning of the feast he was in Galilee, did not go to Jerusalem. और वो उस दिन जो था गलील में रहे, यरूशलेम को नहीं गए. Because the Jews in Jerusalem were planning to arrest him. क्योंकि यहूदी जो लोग थे उस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे. He stayed away from Jerusalem. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को गए नहीं, वहां से दूर रहे. The Feast of Tabernacles is an 8-day feast. और ये जो फसह का जो पर्व होता है ये 8 दिन का पर्व होता है. And in the middle of the feast he goes to Jerusalem. But before that his brothers in Galilee, they told him, why do you go and show yourself in the feast? और उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह गए थे, पर उसके बीच में ये प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे वो आके प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, तो यरूशलेम जाके क्यों नहीं इस पर्व को बनाता? There are 3 feasts in Jerusalem for which every Jew would have to come to Jerusalem. 3 यहूदियों के पर्व थे जिसके लिए हर यहूदी को यरूशलेम आना अनिवार्य होता था. The feast of Passover, एक तो लांगन पर्व जो होता है, the feast of Tabernacles, और ये फसह का पर्व, and the feast of harvest. और एक कटाई कटनी का पर्व. Every Jew would have to go to Jerusalem for these 3 festivals. और इन 3 पर्वों के लिए हर यहूदी को यरूशलेम जाना होता था. 7th chapter of John, we read the first few verses, how his own brothers, who at that time were not believers, they tell him, go and show yourself. You want to be great, go and show yourself there. और यूहन्ना के पहले 7वें अध्याय की पहली कुछ आयतों में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे वो आके उसको कहते हैं, तू यरूशलेम को क्यों नहीं जाता? The Lord says, my time has not yet come. और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मेरा समय अभी आया नहीं है. The word time, there is a word called kairos. और वहां पे जो समय का शब्द है वो काइरोस शब्द है यूनानी में. Kairos means specific time. और काइरोस मतलब एक बिल्कुल निश्चित समय. The word time in English and samay in Hindi is from a Greek word, 2 Greek words, kairos and chronos. और ये जो शब्द है समय और टाइम जो इंग्लिश में है, ये काइरोस और Chronos. क्रोनोस शब्द से बना ये यूनानी शब्द है. Chronos means a period of time. क्रोनोस मतलब एक समय का एक थोड़ा लंबा समय. And kairos means specific time. और काइरोस मतलब एक बिल्कुल निश्चित समय. A specific point of time. एक समय का एक बिल्कुल एक वही क्षण. In the beginning of the festival, the brothers said, go and show yourself. Jesus says, my kairos, my specific time has not yet come. जब प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने कहा कि तू यरूशलेम को जा, तो वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो काइरोस वाला समय जो एकदम निश्चित मेरा समय है वो अभी तक नहीं आया. But then after a few days, in the middle of the feast, he goes to Jerusalem. That is the kairos time. और वो काइरोस वाला समय जो था उसके बीच में, जब पर्व का बीच का समय था, तब प्रभु यीशु मसीह वहां चले जाते हैं. On the last day, he speaks in a loud voice for everyone to hear. और उस आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह जोर से सब सुन सकें ऐसे जोर से बोलते हैं. In John chapter 7, 37 to 39, we read, यूहन्ना 7वां अध्याय 39 और 40वें आयत में हम पढ़ते हैं. the loud voice, the Lord speaks to people. प्रभु यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से उनको बोलते हैं. He who is thirsty, let him come to me and drink. जो प्यासा हो मेरे पास आए, मेरे पास पीने के लिए आए. He who believes in me, as the scripture has said, out of him shall flow rivers of living water. क्योंकि उस वचन में लिखा है कि जो मेरे से जल पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल बह निकलेगा. And John writes, by this he meant the Spirit whom those who believed in him were later to receive. और यूहन्ना लिखता है, और उस वचन से उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे. But Jesus says, you said, let him come to me and drink. He believes in me, as the scripture said, out of him shall flow rivers of living water. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो प्यासा है मेरे पास आके मेरे से पिए, और जो मेरा जल पिएगा उसके अंदर से जीवन के सोते बह निकलेंगे. And John writes about how what they meant was the Spirit whom those who believed in were later to receive. और यूहन्ना उसके बारे में लिखता है, उस आत्मा के विषय में कहा जो उसके विषय में पाने वाले थे.
Till that time, Spirit had not been given because Christ had not been glorified. क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था. And then he speaks in a loud voice for everyone to hear. Actually, the teachers of the law, the Pharisees, sent messengers, the temple guards, to arrest Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने जोर से बोला कि सब सुन सकें, और फरीसियों ने जो था और मंदिर के जो रखवाली करने वाले थे उनको भेजा था कि उसको पकड़ ले. And they knew he would come to Jerusalem because according to a Jewish law, Old Testament law, every Jew would have to come for the 3 festivals. और वो जानते थे कि यीशु मसीह वहां आएंगे, क्योंकि हर यहूदी को अनिवार्य होता था कि ये 3 पर्वों में यरूशलेम में आना ही आना है. And therefore they prepared that temple guard go and arrest him when he comes. और इसलिए उन्होंने उन चौकीदारों को, सिपाहियों को तैयार किया था कि जैसे यीशु मसीह आए उसको बंधक बना लें. This time the Lord doesn't withdraw as he did in the synagogue earlier in 12th chapter of Matthew. और मत्ती में हमने जैसे पढ़ा था कि जब यीशु मसीह को उस समय पकड़ने के लिए वो आए तो यीशु मसीह वहां से चले गए, पर यहाँ पे यीशु मसीह गए नहीं. This time did not withdraw. यहाँ पे इस समय नहीं गए. He stood and spoke in a loud voice. यहाँ पे वो खड़े होके ऊंचे शब्द से बोला. And temple guards were questioned by the authorities. और जो सिपाही आए थे पकड़ने के लिए, उनसे अधिकारियों ने प्रश्न पूछा. Why didn't you bring him in? तुमने उसको क्यों नहीं लेके आए? In John 7 chapter 45-46 we read. यूहन्ना 7वां अध्याय 45-46 में हम पढ़ते हैं. These people say, no one has spoken like this man does. और सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की. They were sent to arrest Jesus. They come back commending Jesus' ministry. No one has spoken like this man. वो तो प्रभु यीशु मसीह सिपाही जो थे पकड़ने के लिए गए थे, पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे हैं कि उसकी तरह तो कोई बात ही नहीं करी किसी ने आज तक. In one place he withdrew, other place the students spoke. एक जगह प्रभु यीशु मसीह चले गए, एक जगह प्रभु यीशु खड़े होके बोले. That was the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है. Now all of us living at a time, this time in India, with all the certain things happening around us, all of us need this wisdom of the Holy Spirit very desperately. और हमारे भारत में जब हम देख रहे हैं ऐसी बहुत सारी बातें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, हमारे को बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा हमारे पास हो. Especially when we share the gospel of Christ. खासकर उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं. We must know where to go and what to speak. हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, क्या बोलना है. Where not to go, where to go. और कहाँ नहीं जाना और कहाँ जाना है. What to speak, when to speak, how to speak. कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमारे को पता होना चाहिए. 1 month after I accepted Christ as Savior and Lord, on 25th of May 1980, when I accepted Christ, 1 month later, 25 मई 1980 को जब भाई का उद्धार हुआ, उसके 1 महीने ही बाद the Lord asked me a question. यीशु परमेश्वर ने भाई से एक प्रश्न पूछा. Will you go where I sent you? Will you speak what I put in your heart? क्या मैं जहाँ तुझे भेजूं तू जाएगा, जो तेरे दिल में डालूं बात वो तू बोलेगा? I said, yes, Lord. तो भाई ने बोला, हाँ प्रभु. And since then I've been trying my best to listen to his voice, to go where I have to go, not go where I should not go, speak what I should speak and not speak what I should not speak. और उस समय से भाई जो है, जो परमेश्वर बोलता है बोलने के लिए वो बोलते हैं, और जहां बोलते हैं जाने के लिए वहां जाते हैं, जहां नहीं जाने के लिए बोलते हैं वहां नहीं जाते, और जो नहीं बोलने के लिए बोलते हैं वो नहीं बोलते. Who teaches us that? ये बात कौन सिखाता है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा सिखाता है. He'll teach us the scriptures. पवित्र आत्मा जी हमें वचन सिखाते हैं. John 14:26. यूहन्ना 14:26 के अनुसार He will remind us of the scriptures. वो हमारे को व्यवस्था परमेश्वर की बातें या स्मरण दिलाएगा. He'll give us the words to speak also. और हमें क्या बोलना है हमारे को सिखाएगा. In 1 Corinthians 2:13 we read. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं. Paul writes. पौलुस ऐसे लिखते हैं. This is what we speak. ये बातें जो हम बोलते हैं. Not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit. ये जिनको हम मनुष्य के ज्ञान से सिखाई हुई बातें नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं. Expressing spiritual truths in spiritual words. आत्मिक बातें आत्मिक बातों को मिला कर सुनाते हैं. Now we need this sensitivity of Holy Spirit to know where to go, where not to go, what to speak, how to speak, and when to speak, when to stop speaking. और ये आत्मा हमारे पास होनी चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा, कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है और कब बोलना बंद करना है. That was the key to the ministry of the Apostle Paul. और पौलुस की जो सेवकाई थी उसकी यही एक कुंजी थी. He was not a very eloquent speaker in natural terms. वो अगर स्वाभाविक जो शारीरिक रूप से देखा जाए तो वो बोलने में बहुत निपुण नहीं थे. He was not a trained speaker. He writes about that in 2 Corinthians 11:6.
और दूसरा कुरिन्थियों 11:6 में वो लिखते हैं कि मैं कोई एक प्रशिक्षित वक्ता नहीं हूं। In fact, in 2 Corinthians 10:10, he writes about what the Corinthians thought of him. और दूसरा कुरिन्थियों 10:10 में वो बताता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। The Corinthians, what the Corinthians thought of him. कुरिन्थी के लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते थे। They thought of him as a person. In writing, is very, very powerful and very weighty and forceful, but in person, he's unimpressive and his speaking amounted to nothing. क्योंकि वे कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। But the Apostle Paul's ministry was by the Holy Spirit's anointing. और पौलुस की जो सेवकाई थी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा से थी। In 1 Corinthians 2nd chapter 4 and 5, he writes, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, my message and my preaching are not with wise and persuasive words. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभावने बातें नहीं है, But the demonstration of the Spirit's power. परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। That your faith will not rest on men's wisdom, but on God's power. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। All of us can seek that power and seek the wisdom of God. हम सब जो है इस परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की बुद्धि को हम पा सकते हैं। In ministry, it's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. और जकरिया 4:6 के अनुसार ना सामर्थ से ना बल से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ये सेवकाई हो सकती है। Now, all of us want to have wisdom. I'm sure all of us would like to have wisdom of God. और हम में से हर एक में कोई सब ये चाहेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा हमारे पास हो। Ephesians 6:10, Paul writes, finally be strong in the Lord and his mighty power. और इफिसियों 6:10 में लिखता निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। You want to be in his power, receive his power and receive his wisdom. हम उसकी बुद्धि, उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति को हम पाना चाहते हैं। But you must know how God answers our prayers. और हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को किस प्रकार उत्तर देते हैं। One way by which wisdom is manifested is in the application of the Bible. और एक तरीका जिसे बुद्धि प्रकट होती है वो है हम बाइबल को किस तरह से हम उसको प्रयोग करते हैं। In fact, in the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 6, the Lord speaks to Moses to the Israelites. तो व्यवसाय 4 अध्याय 6 आयत में मूसा जो लोगों को बोलता है, observe carefully all these commandments, for this will show your wisdom among the nations who will hear the decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। As they would obey the word of God, wisdom would be manifested. जैसे परमेश्वर की वचन को मानेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, बुद्धि जो है प्रकट होगी। Later on in the book of Jeremiah, chapter 8, verse 8 and 9, Jeremiah, God speaks to Jeremiah and says, और बाद में जो यिर्मयाह के 8वें अध्याय की 8वीं 9वीं आयत में यिर्मयाह ऐसा लिखते हैं, how can you say we are wise, for we have the word of the Lord, law of the Lord. तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है। These people have the law of the Lord as compared to other nations. They're saying we are wise because we have the law of the Lord. और ये लोग जो है अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। And God said, how can you say we are wise because we have the law of the Lord? और परमेश्वर से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे पास है। When the lying pens of scribes handled it falsely. परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठ विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। And he goes on to say, so rejecting the word of God, what kind of wisdom do you have? और वो आगे लिखते हैं, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनकी बुद्धि कहाँ रही। So having the Bible doesn't make us wise. Obeying the Bible makes us wise. तो बाइबल हमारे पास है, ये हमें बुद्धिमान नहीं बनाएगी। परमेश्वर की बाइबल की बातों को मानना, आज्ञा मानना, उससे हम बुद्धिमान बनेंगे। That's one way by which wisdom is manifested. और ये एक तरीका है कि जिस प्रकार से हमारी बुद्धि प्रकट होती है। Other is wisdom given by the Holy Spirit. और दूसरा है पवित्र आत्मा की दी हुई बुद्धि। And the rhema or the word of wisdom given to us, we need to ask God for that manifestation, anointing of the Holy Spirit of wisdom. और ये रेमा जो है, ये परमेश्वर की बुद्धि का प्रकट होना, इसके लिए हमारे को परमेश्वर से अभिषेक मांगना है। In the Old Testament times, specific people were anointed for wisdom. पुराने नियम में तो खास लोगों को अभिषेक किया जाता था कि उनको बुद्धि मिले। For example, in the book of Deuteronomy, chapter 34, verse 9, we read, और जैसे व्यवस्था विवरण 34:9 में हम पढ़ते हैं,
Joshua received the spirit of wisdom because Moses laid his hands upon him. और नून के पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। As Moses laid hands upon Joshua, he received the spirit of wisdom. In those days, you can imagine that. और उस जमाने में जब मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसको बुद्धिमानी की आत्मा उसको मिली। Today, every Christian can receive this wisdom because it's mandatory for every Christian. और आज के समय में बहुत जरूरी है कि हर एक को ये बुद्धिमानी की आत्मा मिले, बहुत ही जरूरी है। And when you have wisdom given by the Holy Spirit, we'll be understanding the will of God for us. और जब हमारे पास ये बुद्धि की आत्मा होगी, तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, उसको हम जान सकेंगे। In the church in Colossae, the Apostle Paul wrote, और कलीसियों की पत्री को, कलीसिया को लिखते समय पौलुस लिखते हैं about his prayer for the Colossian church. और कलीसिया की कलीसिया के लिए प्रार्थना लिखते हैं। In Colossians chapter 1 from verse 9. कलोसियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से आगे। Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने, विनती करने में नहीं चूकते। Asking God to fill you with the knowledge of His will through spiritual wisdom and understanding. कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। Spiritual wisdom means wisdom given by the Holy Spirit. और ये जो शारीरिक बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि है, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। And understanding given by the Holy Spirit. और समझ जो है, ये भी परमेश्वर हमारे को देता है। When you have understanding and wisdom given by the Holy Spirit, if we fill the knowledge of God's will for us. और ये आत्मिक ज्ञान और समझ से हम भर जाते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान लेते हैं। All of us would love to know the will of God for a specific will of God. हम सबको परमेश्वर की मेरे लिए वास्ता अलग से मेरे लिए क्या इच्छा है, वो हमें मालूम होनी चाहिए। The specific will of God is revealed through the specific rhema of wisdom given to us by the Holy Spirit. और हमारे लिए खास इच्छा क्या परमेश्वर की, वो परमेश्वर की रेमा से, परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारे को बताते हैं। Specifically where to go, where not to go, what to speak, when to speak, how to speak. वो हमारे को खास तरीके से बताएंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। And very importantly, to be able to identify the traps the devil sets for us through people. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे को ये पहचान हो जाना कि शैतान हमारे लिए कहाँ-कहाँ फंदे लगा रहा है। Our enemy in our ministry is not people, it is the evil one. हमारी सेवकाई में हमारा जो वैरी है वो लोग नहीं है, पर वो दुष्ट है। He uses people of this world to try to trap us and to bring suffering into our lives, but when we have wisdom of God, we will know how to tackle that. और वो लोगों का प्रयोग करता है कि हमारे जीवन में हमारे फंदे लगाए, पर अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होगी तो हमें समझ में आएगा कि कैसे उसका सामना करना है। Wisdom gives us patience, Proverbs 19:11. और नीति वचन 19 उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं, बुद्धि से हमारे को धैर्य मिलता है। Wisdom will teach us humility. और इससे हमारे को नम्रता, बुद्धि से हमारे को नम्रता सीख मिलती है। James 3:13. याकूब 3:13। When you have wisdom, we'll be able to patient with people and not react and become proud when people harm us or insult us. जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास आएगी तो हम जो है उसको धैर्य से सामना करेंगे, उसको सह सकेंगे, और लोग जो हमारी बुराई करेंगे उसको उसी तरह से जवाब नहीं देंगे। We'll have an effective, powerful and fruitful ministry. और हमारी जो सेवकाई होगी प्रभावशाली और बहुत ही फलदायक सेवकाई होगी। So please desire this wisdom of God at a particular point to know how to respond to situations and people. परमेश्वर से इस खास बुद्धि को, परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान की बुद्धि को मांगे ताकि हम उस खास परिस्थिति में किस तरह से हमें जवाब दें। When we face hostile people, people oppose us, we will know exactly what to speak at that point. Don't imagine, don't plan what you're going to speak. At that time, it will be given to you what to speak. जब हमारे को ऐसे लोग जो हमारे विरोध में उनका सामना करना पड़ेगा, तो हम उसकी योजना ना बनाए हमें क्या बोलना है। परमेश्वर खुद उस समय हमारे को बुद्धि देगा कि हमें क्या बोलना है। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। At that time, he'll tell us what to speak and how to speak. वो हमें उसी समय बताएगा हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना। Especially in the context of evangelism, it's the Lord who draws people to Jesus. और ये खासकर सुसमाचार की सेवकाई में ये बहुत जरूरी कि लोगों को किस तरह से हम परमेश्वर की ओर लेके आए। We don't bring anyone to Jesus. The Holy Spirit brings people to Jesus. और हम अपने सामर्थ्य से, अपने प्रयास से किसी को प्रभु के पास नहीं ला सकते, पवित्र आत्मा जी खुद लेके आते हैं। We bring Jesus to people, not people to Jesus. हम यीशु मसीह को लोगों के पास लेके जाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के पास नहीं लेके आते। Meaning, we bring the message of Christ to people.
इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं. And as we speak in love with the wisdom of God, the Lord will draw people to Him. और जब हम प्रेम से परमेश्वर की बुद्धि से उनको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, परमेश्वर अपने आप उन लोगों को अपनी ओर लेके आएगा. Ministry is a very, very simple ministry. It's not complicated at all. तो यीशु सुसमाचार की सेवकाई बहुत साधारण है, इसमें कोई भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है. So as we are led by the Spirit of God, we'll manifest the wisdom of God. And please desire this, with earnest desire. Lord, I want this. Without this, I cannot be effective in your ministry, Lord. और हमारे लिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि हम उसकी बुद्धि के बिना उसकी सेवकाई नहीं कर सकते. Every spiritual gift we desire to us as long as our motivation is right. और हर बुद्धि जो ये आत्मा का जो दान है, ये परमेश्वर हमें देगा जब तक कि हमारा जो उसके पीछे मनसा है वो सही हो. I mean, ask God, you should know why you're asking and have the right motivation to glorify the Lord and edify God's people. जब परमेश्वर से मांगे तो हमारे को सही हमारी मनसा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की देह की बढ़ोतरी के लिए उस दान को मांगे. May God bless each one of us as we take the ministry very seriously. और हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से लें और हर बात को परमेश्वर की वचन को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में चलें. God bless each one of us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे.